Hello friends, welcome to Gynae and Ops lecture. In this lecture, we are going to talk about the implantation. In previous lecture, we discussed about the fertilization. So after fertilization, the embryo will get attached to the endometrium, that is called as implantation. So today we will discuss about that. So implantation is defined as the process by which the embryo attached to the endometrial surface of the uterus and invades the epithelium and then the maternal circulation to form the placenta. So implantation उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एम्ब्रियो जो है वो एंडोमेट्रियल सरफेस ऑफ द यूट्रस से अटैच होता है एंड फर्दर इन्वेट करता है थ्रू द एपिथेलियम एंड टू द मैटरनल सर्कुलेशन मींस मैटरनल ब्लड वेसल्स को इन्वेट करेगा और उससे कम्युनिकेट कर जाएगा एंड लेटर ऑन इट विल फॉर्म द प्लेसेंटा. So this process is called as implantation. So here we can see that this was the site of fertilization. So यहाँ पे fertilization हुआ और this is the zygote which is surrounded with zona pellucida. Here you can see. So after 30 hours of zygote formation, approximately, there will be cleavage in the zygote cell, and ultimately it will form the two cell stage, and each cell is now called as ब्लास्टोमियर. हर एक सेल को ब्लास्टोमियर कहा जाता है. This is also blastomere, this is also blastomere. So in this manner, two cell, then four cell, then 16 or 8 cell stage will come. So at this stage or 16 cell stage, we can say it looks like a mulberry. That's why its stage is called as morula. So here one thing you can see that the size of this zygote up to the morula is almost or nearly same, we can say, because this outer zona pellucida, it will not allow it will not allow the embryo to come out, and ultimately it will compress. And the benefit of this is इसकी वजह से जो एम्ब्रियो है उसका साइज कांस्टेंट है, सो इट विल इजीली क्रॉस द लुमेन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब विच इज़ वेरी नैरो. अगर ये जोना यहीं पे हैच हो जाए, यहीं ब्रेक हो जाए, एम्ब्रियो यहाँ से निकल जाए, सो अल्टीमेटली साइज इसका बड़ा हो जाएगा एंड इजीली जो है वो ये फिर आगे मूव नहीं कर पाएगा इजीली. सो इन दिस मैनर, और कह सकते हैं इस स्टेज में जो है वो मोरुला एंटर होता है टू द यूट्राइन कैविटी. This morula, which is surrounded by the zona pellucida. So almost on fourth day, means fertilization के बाद 3 days ने 3 days ये spend किया fallopian tube में, and on fourth day after fertilization it enters into the uterine cavity in the stage of morula. Later on, ये जो नंबर ऑफ सेल्स हैं कंटिन्यूली क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट द सेल मास है वो इंक्रीज करता जा रहा है. सो बिकॉज ऑफ दैट एंड जोना पेल्यूसिडा इज स्टिल प्रेजेंट. सो व्हाट विल हैपन, ये जो जोना पेलुसिडा है ये कंप्रेस करेगी आउटर सेल्स ये पेरीफेरी की जो सेल्स हैं कंप्रेस होंगी, एंड बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन यहाँ पे ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगी, लाइक सोडियम चैनल ओपन्स होंगे और अलोंग विद वाटर इट मींस ये सारा जो सेल का वाटर कंटेंट है इट विल कम आउट, और हम ये कह सकते हैं कि जो आउटर सेल्स हैं ये वाटर सिक्रीट करने लगती हैं और फ्लूइड सिक्रीट करने लगती हैं within this cellular mass, and now a cystic appearance is there, and this cystic appearance is called as blastocele. This cavity formation, fluid filled cavity formation, is called as blastocele, and this whole structure is called as blastocyst. Cavity is called as blastocele, and this whole embryo is now called as blastocyst. इसको जो है वो blastocyst कहा जाता है. So in this way, और हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्थ डे के बाद ये 1 to 2 day
और रफली अराउंड मैक्सिमम 1 to 3 डे जो है वो ये यूट्रस में स्पेंड करता है। ये जो एम्ब्रियो यूट्राइन कैविटी में रीच किया है, इट विल स्पेंड अराउंड 1 to 3 डे विद इन द यूट्राइन कैविटी बिफोर इट इज getting attached to the endometrium. So during this 1 to 3 day we can say ये जो zona pellucida है it has to break. अगर ये zona pellucida खत्म नहीं होगी, ब्रेक नहीं होगी, और जब तक ये जो blastocyst है it will not come out from this zona pellucida, it will not able to get implanted. तो इस वजह से जो है हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इसको जो है वो आउट होना है फ्रॉम दी दिस zona pellucida. Now, so the escape of blastocyst by breaking the zona pellucida process is called as zona hatching. Means the dissolution or breaking of this zona pellucida is called as zona hatching. So ये जो hatching होगी वो उसका mechanism क्या है? First thing is pressure effect. प्रेशर इफेक्ट क्यों आएगा? बिकॉज जो एम्ब्रियो का साइज है उसमें सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो जिसकी वजह से उसका साइज जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है. सो बिकॉज ऑफ दैट चूंकि सेल मास बढ़ रहा है तो इट विल कॉज प्रेशर इफेक्ट. सेकेंड थिंग इज कि ये जो आउटर सेल्स हैं जो कि कंप्रेस्ड हैं और फ्लैट होती जा रही हैं, they are releasing certain enzymes that is called as proteolytic enzyme, or as we all know this outer layer or zona pellucida is made up of protein, so this proteolytic enzyme will able to dissolve this protein layer. So these are the two most accepted mechanism through which the zona hatching will occur. So one is the pressure effect due to increase in the size of the embryo, and the second is the proteolytic enzyme released from the outer layer of the outer cells of uh, embryo. So like this the zona hatching will occur. Next, see here, this is the this is the structure of the blastocyst which has come out from the zona pellucida, and this is actually the uterine cavity, and this is the endometrium, and here I have enlarged one small piece of the endometrium where the embryo is going to attach or going to implant. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे एंडोमेट्रियम का, तो हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में लाइक एंडोमेट्रियल साइकिल में हमने बताया है. तो यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज द सुपरफिशियल एपिथेलियम और सरफेस एपिथेलियम. दीज आर द ग्लैंड्स विच आर इन सिक्रीटरी फेज, सिक्रीशंस रिच है इस टाइम, और इसके जो सिक्रीशंस होते हैं उसको यूट्राइन मिल्क कहा जाता है. एंड दीज आर द एपिथेलियम, दीज आर द सर्टेन मॉलिक्यूल्स जिसको हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं later on we'll discuss, that is MUC1, which will not allow any other thing to get attached. And this is the spiral arteries. These black cells are the stromal cells, and these orange shaded area is nothing but the matrix or base where the cells are embedded. So this is the endometrium where the embryo is going to implant, and this is the embryo in blastocyst stage which is going to implant. So सबसे पहले हम देखेंगे कि इम्प्लांटेशन से पहले एम्ब्रियो के अंदर क्या चेंज आया. तो जो भी सेल्स थी वो डिफरेंशिएट हुई. जो आउटर सेल्स हैं इस तरह से, जिसको मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है, इनको हम कह रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट. ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं ये आगे चल के मेम्ब्रेन्स एंड प्लासेंटा फॉर्म करती हैं. एंड ये जो पर्पल कलर सेल्स जिसको हम बता रहे हैं, दीज आर दी नथिंग बट इनर सेल मास, और इसको हम एम्ब्रियो ब्लास्ट भी कहते हैं बिकॉज फ्यूचर में ये एम्ब्रियो और फीटस को डेवलप करती हैं. एंड दिस इज नथिंग बट द प्राइमरी yolk sac, or we can say the blastocyst cavity. So these are the changes in the uh,
These are the changes in the embryo before implantation. And what are the changes in this endometrium? We'll see. So, one thing that implantation का जो process है वो कई स्टेज में होता है. सबसे पहला स्टेज जो होता है उसको हम कहते हैं अपोजिशन, और जिसको हम कह सकते हैं इनिशियल कांटेक्ट ऑफ एम्ब्रियो एंड द एंडोमेट्रियल सेल्स. सो अब ये जो इनिशियल कांटेक्ट है जिसको हम अपोजिशन कह रहे हैं, इसी को हम इनिशियल कांटेक्ट भी कह सकते हैं. दोनों एक दूसरे के टच में कैसे आएंगे, एम्ब्रियो एंड एंडोमेट्रियल सेल्स. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ प्रोट्रूजन हो रहा है. ठीक है, दीज आर दी एपिथेलियल सेल्स. इनमें प्रोट्रूजन हो रहा है एंड दिस प्रोट्रूजन को कहा जाता है पीनोपोड, फॉर्मेशन ऑफ पीनोपोड. यहाँ आप देख रहे हैं कि एम्ब्रियो के अंदर जो है वो सरफेस बहुत इरेगुलर हो रही है, और वी कैन से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोविलाई. ठीक. वन मोर थिंग, पीनोपोड फॉर्मेशन की वजह से ये जो MUC1 प्रोटीन था वो आउट हो गया, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ इस पे अधेयर या अटैच नहीं हो सकती थी. तो पीनोपोड फॉर्मेशन ने क्या किया, इस MUC1 प्रोटीन को आउट कर दिया. और ये पिनोपोड क्या करेगा, इट विल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी. सो ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा जो कि यूट्राइन कैविटी में प्रेजेंट है. सो वंस इट विल try to absorb water, pull this it will also pull this embryo. एंड इसका भी सरफेस रफ है, इसका भी सरफेस रफ है. सो इस तरह से दोनों का इनिशियल कांटेक्ट होगा. So this initial contact is called as apposition. So that is through pinopode formation in the endometrial cell and the formation of microvilli on the surface of trophectoderm or trophoblast cells. ये दो वेरी इनिशियल चेंज है. अब ये जो चेंज है जिसकी वजह से मीन्स जिसको हम पिनोपोड फॉर्मेशन कह रहे हैं, ये दिस चेंज इन द एंडोमेट्रियम इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन. अगर हम देखेंगे कि ये अगर हम फर्टिलाइजेशन के बाद से डे काउंट करते हैं कि कौन से डे पे ये प्रोसेस हो रहा है, तो जैसा कि हमने प्रीवियस उसमें बताया, यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं 3 डे, 3 डे जो है वो स्पेंड हुआ फैलोपियन ट्यूब में, 4th डे यूट्राइन कैविटी में एम्ब्रियो आया, 5th 6th डे ये यहाँ पे रहा. ठीक. और अराउंड 6th और 7th डे जो है वो इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो गया. तो अगर हम इसको फर्टिलाइजेशन के डे से काउंट करेंगे तो ये रफली कौन सा डे होगा, मींस फर्टिलाइजेशन के बाद 3 डे मींस 14th डे ओवा रिलीज हुआ, 15th डे के करीब जो है ये फर्टिलाइज हुआ, एंड 3 डे इसने स्पेंड किया मींस 18 डे इसने यहाँ स्पेंड किया फैलोपियन ट्यूब में 18th डे तक. फिर 4th डे यहाँ पे आया मींस 19th डे ये यूट्राइन कैविटी में आ गया, एंड देन 20th डे के अराउंड ये जो है अटैच होना शुरू हुआ 20 21st डे. तो अगर हम एंडोमेट्रियल साइकिल में जैसा कि मैंने डिस्कस किया है कि प्रोजेस्ट्रॉन का जो पीक लेवल होता है दैट इज रफली अराउंड 21 to 22nd डे. तो 21 और 22nd डे पे प्रोजेस्ट्रॉन अपने पीक पे है. इवन इस्ट्रोजन भी काफ़ी अच्छे लेवल में या कॉन्सेंट्रेशन में ब्लड में प्रेजेंट होता है. तो अब इस वजह से क्या होगा, क्योंकि ये प्रोजेस्ट्रॉन इज वेरी हाई, तो ये जो दोनों हार्मोन्स है स्पेशली प्रोजेस्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ दिस ये पिनोपोड फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे हो रहा है. सो प्रोजेस्ट्रॉन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पिनोपोड फॉर्मेशन ड्यूरिंग मिड लूटियल फेज, और वी कैन से द 21 to 22nd डे अराउंड. और ये जो चेंजेस है ये थोड़े देर के लिए रहते हैं. अगर ये चेंजेस यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरे लूटियल फेज में प्रेजेंट होंगे, ये थोड़े दिन के लिए रहते हैं. उस पीरियड को कहा जाता है विंडो पीरियड. विंडो पीरियड, अगर उस पीरियड में एम्ब्रियो नहीं आया और अटैच नहीं हुआ या डिले हो गया मीन्स ये चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं और एम्ब्रियो यहाँ पे रीच नहीं किया उस डे पे, तो फिर ये खत्म हो जाएगा, इसकी रिसेप्टिविटी क्या होगी, खत्म हो जाएगी. उसके बाद अगर एम्ब्रियो रीच कर रहा है यूट्राइन कैविटी में तो ये रिसेप्टिविटी चूंकि खत्म हो गई है, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल उसके बाद क्या होगा, कम होने लगेगा. तो इस फिर एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा. तो इस पीरियड में ही एम्ब्रियो को आना है अटैच होने के लिए. दैट इज कॉल्ड एज यूट्राइन रिसेप्टिविटी, जो कि डेवलप होती है मिड लूटियल फेज में, और हम ये कह सकते हैं कि जब प्रोजेस्ट्रॉन अपने
पीक पे होता है. So this is called as apposition, or this is through pinopod formation. Next, नेक्स्ट हम कहेंगे एडहीजन. ठीक है. अब एडहीजन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे पिनोपोड फॉर्मेशन के साथ ही यहाँ पे कुछ पिनोपोड्स के ऊपर कुछ सेलेक्टिन लाइगेंड्स जो है वो डेवलप होने लगे. दीज आर दी लाइगेंड्स जो सेलेक्टिन मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, अटैच करेंगे. तो ये जो सेलेक्टिन्स हैं ये डेवलप हो रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के ऊपर. ठीक. तो अब ये क्या होगा, आपस में मॉलिक्यूलर बाइंडिंग शुरू हो गई इस तरह से. तो दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअली द adhesion. Adhesion. So here you can see this was, here you can see my ये क्या था यहाँ पे आप देखिए जिसको मैं रेड रेड करके दिखा रही हूँ, दिस वाज द अपोजिशन. एंड उसके बाद ये जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो रही है दोनों के बीच में, स्पेशली थ्रू सेलेक्टिन एंड सेलेक्टिन लाइगेंड के थ्रू, इसको हम कहेंगे अडहीजन. अडहीजन. अदर देन सेलेक्टिन जो है अदर मॉलिक्यूल्स भी हैं जैसे कि इंटीग्रीन्स जिसको भी बाइंडिंग मींस दो मेम्ब्रेन के बीच बाइंडिंग डेवलप करता है. तो दैट इज द इंटीग्रीन्स. सो इंटीग्रीन्स भी हैं. इसी तरह से कैथरीन्स जो हैं, कैथरीन्स जो प्रोटीन्स हैं. तो अदर देन सेलेक्टिन, इंटीग्रीन्स एंड कैथरीन मॉलिक्यूल के थ्रू भी आपस में बॉन्डिंग होती है. सो जो एडहीजन का प्रोसेस है विच इज द सेकेंड स्टेप इन द इम्प्लांटेशन, दैट इज थ्रू, that is adhesion. So this is the second step जिसको हम adhesion कह रहे हैं. अच्छा, जैसे ही ये adhesion शुरू हुआ तो यहाँ पे कुछ inflammatory रिएक्शन शुरू हुए. ये जो inflammatory रिएक्शन शुरू हुए that is due to prostaglandin formation. So this PGE2 जो है वो बढ़ जाएगा, और ये जो PGE2 बढ़ेगा under the influence of cyclooxygenase activity. साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम के थ्रू जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस बढ़ जाएगी विद इन द एंडोमेट्रियल सेल्स एज वेल एज द स्ट्रोमल सेल्स. तो अब ये क्या करेंगे, दीज आर द स्ट्रोमल सेल्स. तो अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ रहे हैं ये क्या करेंगे, इन्फ्लामेटरी चेंजेस कॉज करेंगे. सबसे पहला, परमिएबिलिटी इसकी बढ़ गई एज वेल एज द वेसल्स जो है वो डायलेट हो गई, तो वैसो डायलेटेशन शुरू हो गया. दूसरी चीज, ये जो सेल्स थी जो कि मैंने डॉटेड दिखाया था पहले, अब ये कैसी हो रही है, साइज इनका बढ़ रहा है. इसके अलावा न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है. तो इन चेंजेस को कहा जाता है डेसिडुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रोमल सेल्स. स्ट्रोमल सेल्स का क्या हो रहा है, डेसिडुअलाइजेशन. सो ड्यूरिंग डेसिडुअलाइजेशन एज यू कैन सी हियर, these are the fat droplets and these are the certain glycogen content, and here you can see rich uh, Golgi bodies because they are producing the secretory granules, and also the rough endoplasmic रेटिकुलम. तो ये सारे जो ये, इसके अलावा न्यूक्लियोलस जो है वो बहुत सारे हो जाते हैं और न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाता है. तो दीज आर दी डेसिडुअल चेंजेस. तो डेसिडुअल चेंजेस हो रहे हैं मींस सेल्स के अंदर कुछ स्पेशल चेंजेस आ रहे हैं. इन सेल्स को कहा जाता है डेसिडुअल सेल्स. इस प्रोसेस को कहा जाता है डेसिडुअलाइजेशन. एंड ब्लड वेसल्स डायलेट हो रही हैं, परमेबिलिटी बढ़ रही है. So all these changes are due to increased prostaglandins, especially prostaglandin E2, which is through cyclooxygenase pathway. So this process is called as adhesion. So means adhesion में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल थे और किस मॉलिक्यूल्स के थ्रू दोनों जो एंडोमेट्रियल सेल्स हैं और जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं लाइक ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं वो आपस में बाइंड हुई. वन इज सेलेक्टिन, सेकेंड इज इंटीग्रिन्स एंड थर्ड इज कैथरीन्स. बाइंडिंग शुरू हुई. बाइंडिंग के साथ ही मीन्स एडिशन के साथ ही क्या हुआ, इसमें डेसिडुअलाइजेशन हो गई. कोई चीज़ किसी से जब अटैच होगी तो क्या होगा, उसको जो है वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है. ठीक. तो वो जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो कैसे हो रहा है, थ्रू साइक्लोऑक्सीजनेस pathway के through by formation of prostaglandin E2, and that causes dilatation of blood vessels and the changes, certain changes in the
cells, and that change is called as desodalization. So in this way the adhesion will occur. This is the second step of the implantation. So first हमने पढ़ा apposition, second हमने पढ़ा adhesion. So during decidualization, अच्छा decidualization का benefit क्या होता है? Decidualization से ये protect करता है from maternal immunological rejection, because जो embryo है that is also having certain father derived protein, तो बॉडी उसको रिजेक्ट करेगी, फीमेल की जो बॉडी, मदर की जो बॉडी है वो सिर्फ अपने टिश्यू को एक्सेप्ट करेगी, अपने डिराइव प्रोटीन को एक्सेप्ट करेगी, जो फादर से डिराइव हो रहा है उसको रिजेक्ट कर देगी। तो ये जो डेसिडुअलाइजेशन हो रहा है ये उसको प्रिवेंट करता है। ठीक। नेक्स्ट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रिमॉडलिंग। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रिमॉडलिंग मीन्स कि यहाँ पे जो आपने ये देखा, इसके जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसमें थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे एंड इट विल इजीली पेनिट्रेबल बाय दिस इन्वेडिंग एम्ब्रियो, इजीली इन्वेड कर पाएगा। इसी तरह से एंटीऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, it also act और provide certain antioxidative property, तो इस वजह से जब एंटीऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जनरेट नहीं होने देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एंजियोजेनेसिस, by producing certain vascular endothelial growth factor and all, it will cause angiogenesis. So these are the benefits of decidualization. After adhesion, the third step is penetration, or we can say proper invasion. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पेनिट्रेशन में क्या हो रहा है कि एम्ब्रियो जो है वो नाउ मींस इन्वेडिंग दिस स्ट्रोमा और दिस रेसिडुअल सेल्स। तो जैसे ही ये इन्वेड कर रहा है, यहाँ पे जो आउटर लेयर थी इसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। वो चेंजेस क्या हैं? जैसे इधर देखिए, यहाँ पे मैंने दिखाया था सिर्फ एक तरह की सेल दिख रही थी, अब यहाँ पे कैसी दिख रही हैं? डॉटेड सेल्स दिख रही हैं। तो डॉटेड जो सेल्स हैं, एक्चुअली हम डॉट इसलिए दिखा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे देर इज नो प्रॉपर सेल बाउंड्री। जो भी साइटोप्लाज्म है सेल्स के वो कंटिन्यूएशन में आ गए। लाइक मान लीजिए ये साइटो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थी, तो जब ये आपस में क्या होंगी, इनके साइटोप्लाज्म कंटिन्यूएशन में आ जाएंगे तो ये इस तरह से दिखाई देने लगेंगी। फिर और जो नेबरिंग सेल्स हैं उनके ये तो इस तरह से दिखने लगती, तो इसलिए हमने इसको डॉटेड शो किया है। तो इसको कहा जाता है सिंसाइशियम। सिंसाइशियम कहते हैं जो कंटिन्यूएशन में हो, जिनके न्यूक्लियस और जिनके साइटोप्लाज्म जिन सेल्स के आपस में कंटिन्यूएशन में होते हैं, देयर इज नो सेल बाउंड्री, उन तरह के सेलुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सिंसाइशियल सेल्स। तो जो आउटर लेयर्स हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट की, वो कंटिन्यू होती जा रही हैं, आपस में मिक्स होती जा रही हैं, और इस तरह से उनके न्यूक्लियस जो है और उसके साइटोप्लाज्म जो है वो आपस में बिल्कुल कंटिन्यूएशन में आ गए, तो उसको हम कह रहे हैं सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। और जो इनर जैसे पहले थी साइटोट्रोफोब्लास्ट, तो यही साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स डेवलप कर रही हैं, आउटसाइड ग्रो करती जा रही हैं और बाहर वो जो है वो कंटिन्यू होती जा रही हैं। तो इस तरह से तो तो जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं वो जो है वो डिफ्रेंशिएट होने लगी, आउटर सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट एंड इनर साइटोट्रोफोब्लास्ट। और ये जो सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं ये स्पेशली रिलीज करती हैं सर्टेन प्रोटीएजेस, और इन प्रोटीएजेस की वजह से जो है वो ये जो सेलुलर मींस जो मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, उसमें जो प्रोटीन्स एंड ऑल होते हैं उसको डिसॉल्व करता है और उसकी लाइसिस करता है, और ये इजीली जो है वो एंटर करता जाएगा विद इन द सब्सटेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। सो दिस इज पेनिट्रेशन। तो ये पेनिट्रेशन और आगे जब एंटर करेगा, मींस जैसे और पेनिट्रेट करेगा, तो ये जो ये यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स विद इन द सिंसाइशियल लेयर। तो जो आउटर सिंसाइशियल लेयर थी उसमें क्या हुआ, स्पेस डेवलप होने लगे। तो इन स्पेस को हम क्या कहेंगे? लैक्यूनार स्पेसेस। इनिशियली दे आर मींस एम्प्टी, आप कह सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये स्पेस या वैक्यूल्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे जैसे ये एंटर करता जा रहा है तो वैक्यूल्स डेवलप होंगे, और लेटर ऑन ये जैसे ही आर्टरी को इन्वेट कर देगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्पेस थे वो किससे फिल हो गए? ब्लड वेसल्स से, मींस ब्लड से फिल हो गए। जैसे इसने ब्लड वेसल को इन्वेट किया तो ये लेक्यूनार स्पेसेस में ब्लड आ गया। इस स्टेज में ही जो मींस एम्ब्रियो है वो मदर के कांटेक्ट, मदर के सर्कुलेशन से कम्युनिकेट कर गया।
मदर के सर्कुलेशन से यहाँ पे कम्युनिकेट कर गया। एंड दिस इज द स्टेज कि जो भी हार्मोन ये सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल रिलीज कर रही हैं, स्पेशली द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, वो अब यहाँ पे सर्कुलेट होने लगेगी, ब्लड में आ गई। तो ब्लड में जो है यहाँ पे HCG आ गया मैटरनल ब्लड में, देन मैटरनल ब्लड से फिर ये सो यहाँ पे once the complete embryo is embedded within the endometrial bed, then this entry point you can see is sealed with certain fibrin clots, and later on re-epithelialization will occur, and this is the completion of implantation. So this was started around 6th to 7th day after fertilization and completed by 10th to 11th day after fertilization. And one more thing is the decidua which is present just below this embedded or implanted embryo is called as decidua basalis, and the decidua that is covering this endomet means this embryo is called as decidua capsularis, and rest of the decidua of the other uterine cavity is called as decidua vera. So this was all about the implantation process. Hope you all are able to understand, and thanks for watching.